Amen. Amen. Let's read Acts chapter 1 verse 4. आइए पढ़े प्रेरितों का पहला अध्याय चौथी आयत। On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. Amen. देखिए प्रेरितों के काम पहली अध्याय उसकी चौथी आयत इस प्रकार कहती है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमेन। Amen. Do not leave Jerusalem, यरूशलेम को ना छोड़ो, but wait for the gift परंतु परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो हो my father promised. मेरे पिता ने वायदा किया है। Who's promised? किसका वायदा? My father promised. मेरे पिता का वायदा। Whose father is he? किसका पिता है ये? The father of Jesus Christ. यीशु मसीह का पिता। यहाँ पर इस आयत में Here in this verse, Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का बाट जो हो। This is the end of the week. ये इस सप्ताह का अंत है ये अंतिम सप्ताह है, and और this is the conclusion of the month of building. यही पूरा निचोड़ है परमेश्वर के द्वारा निर्माण के विषय में। And if you will grab this, और अगर आप इसको पकड़ लोगे, you will thrive in this world. Amen. आप इस दुनिया में विजय जियोगे। Amen. If you will hold this secret, अगर आप उसके भेदों को पकड़े रहोगे, you will live victorious. आप जयवंत जियोगे। Not in one day, सिर्फ एक दिन नहीं, not in 2 days, सिर्फ 2 दिन में नहीं, not in 3 days, सिर्फ तीसरे दिन में not नहीं, in 4 days, चौथे दिन में नहीं, not only 5 days, सिर्फ 5वें दिन में नहीं, forever and हमेशा ever, के लिए, till the day of Jesus Christ. Amen. यीशु मसीह के दिन तक। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? It is so ये beautiful. बहुत ही सुंदर है। Do you know what Apostle Paul said? आपको पता है प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? Do you not know that in a race all the runners run, आपको नहीं पता कि दौड़ में सभी भागने वाले दौड़ते हैं, only one gets the prize? सिर्फ एक ही जीतता है। Amen. आमेन। Run in such a way इस तरह दौड़ो as you get the prize. कि आप इनाम को पाओ। Amen. आमेन। Run in such a way इस तरह दौड़ो that you get the prize. कि आप इनाम को पाओ। Ending should be beautiful. और ये बहुत बेहतर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, hallelujah. हालेलुया। This is my father's promise. I will end beautifully. वायदा है, I will run the race. मैं दौड़ को दौड़ूंगी And I will win the race. और मैं दौड़ को जीतूंगी। Oh, let this flame burn और होने दे ये आग जलती रहे to glorify your name. परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, To glorify your name. उनके नाम को महिमा देने Let के लिए। this flame burn होने दे ये आग जलती रहे to glorify your name. Acts chapter 1 verse 5. प्रेरितों का पहला अध्याय 5वीं आयत पढ़ें। But in few days, can all see the screen? Read with me slowly. मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ें। For John baptized with water, but in a few days you will be baptized
with the Holy Spirit. Amen. Yeshua, you will be baptized with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा को पाओगे। You will be baptized with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे। Amen. आमेन। What happened when this Holy Spirit came on the day of Pentecost? क्या हुआ था उस दिन जब पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया था? Everyone was started हर किसी ने शुरू किया, speaking in tongues, हर शुरू किया अन्य अन्य भाषाओं में बोल, and they were speaking their native languages, और वो बाहर के लोगों की भी भाषाओं को बोल रहे थे। and people were amazed how come they are speaking the other languages. और लोग भौचक्के हो गए थे कि कैसे ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, How come? कैसे? Only by the baptism of the Holy Spirit. सिर्फ और सिर्फ Amen. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hey. So beautiful. बहुत सुंदर है ये, Precious Holy Spirit. खूबसूरत पवित्र आत्मा, Precious Holy Spirit. खूबसूरत पवित्र आत्मा। Thank you for coming. धन्यवाद यहाँ आने के लिए, Thank you for coming धन्यवाद आने के लिए and baptize me. और मुझे बपतिस्मा देने के लिए, Baptize me. मुझे बपतिस्मा देने के लिए। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Do you know क्या आपको पता है how can we build? हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? One, पहला है the gift which is Father promised. वो तोहफा जो परमेश्वर का वायदा है। Amen. आमेन। The gift which is Holy Spirit. वो तोहफा जो कि स्वयं पवित्र आत्मा है। The gift which is Holy Spirit. तोहफा जो पवित्र आत्मा है। Do you know आपको पता है that all of the gifts कि सभी वरदान which God ever give to you, जो परमेश्वर ने आपको दिए, the number one gift पहला वरदान that stand out, वो पहला वरदान God Himself. परमेश्वर स्वयं प्रथम वरदान। Holy Spirit is a God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Lord has given Himself to me. परमेश्वर ने स्वयं मुझे ये दिया है। Lord has given Holy Spirit to you. प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया Lord है। has given Himself to me. प्रभु ने स्वयं मुझे ये दिया है। Lord has given Himself to you. प्रभु ने स्वयं आपको ये दिया है। And when और जब God परमेश्वर will meet आपसे मिलेंगे, will meet God, और परमेश्वर जब स्वयं परमेश्वर से मिलेंगे, what will happen? फिर क्या होगा? Oh, Galatia! Galatia! Are you getting what I'm trying to say क्या आप here? समझ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? The Lord who is in me, जो प्रभु मुझ में है, the Lord who has given me, जो प्रभु ने मुझे दिया है, who is in me, जो मुझ में है, who is meeting Lord, जो प्रभु से मिल रहा है, what will happen? क्या होगा? What will happen? क्या होगा? Oh, Galatia, you're not getting the miracle will Galatia, happen. Hallelujah! Only God can do miracle. Only God ही अद्भुत काम can कर सकते हैं। bring the breakthrough. Only सिर्फ God प्रभु can ही bring बंधनों the को तोड़ सकते breakthrough. हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can we read John chapter 17, John chapter 14, verse 17? क्या हम यूहन्ना का 14वां अध्याय पढ़ सकते हैं? Let's read John chapter 14, verse 17. आइए पढ़े यूहन्ना का 14वां अध्याय। Let's look into the screen, those who can see the screen, आइए हम स्क्रीन पे देखें, जो कोई भी देख सकता है, and read slowly और धीरे धीरे पढ़े and understand और समझें what this verse trying to speak. ये आयत क्या कहने की कोशिश कर रही है। Let's read with me. आइए मेरे साथ पढ़ो। The Spirit of truth,
the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Amen. हालेलुया। Can we clap for this person क्या हम इस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करें, तालियों को who is बजाएं, in me and who is with me? जो मेरे अंदर है और जो मेरे पास है, और जो मेरे पास है, मेरे करीब है। जो मेरे करीब है। The world, संसार, those who don't know God, संसार जिन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, they don't know Him. वो उनको नहीं जानते। But who know? पर कौन जानते हैं? Who knows? कौन जानते हैं? Who knows? कौन जानते Who हैं? knows कौन Him? कौन जानते हैं? I know Him. मैं उन्हें जानती हूँ। I know मैं Him. उन्हें जानती हूँ। I know मैं Him. उन्हें जानती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Beautiful that I know the most powerful, mighty God क्या ये who can खूबसूरत नहीं है? exploit. क्या खूबसूरत नहीं है कि मैं एक बेहतर सामर्थी परमेश्वर को जानती हूँ? हालेलुया। Aha, Sharamamama. Yeshua, thank you, Lord, that you reveal yourself to me. धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने स्वयं को प्रकट किया मेरे ऊपर। What happened to Moses when he goes क्या हुआ था मूसा के साथ जब वो गया था? to the near to the burning bush? जब वो क्या हुआ था जब वो आग की झाड़ी के पास गया था? What happened to Moses when he goes near to the burning bush? क्या हुआ था मूसा के साथ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति के करीब गया था? Lord said, "Do not come closer, Moses. प्रभु ने कहा कि मोसेस और करीब मत आ, You will die." तू मर जाएगा। But we cannot die. पर हम नहीं मर सकते। We cannot die. हम नहीं मर सकते। क्यों? क्यों? Do you know why? आपको पता है क्यों? Because क्योंकि Lord is in me. क्योंकि प्रभु मुझ में है। हालेलुया। And Lord is seeing Lord. और प्रभु को देख रहे हैं। And I cannot die. और मैं मर नहीं सकता। Because Lord is seeing Lord. क्योंकि प्रभु स्वयं प्रभु को देख रहे हैं। We हालेलुया। have this builder with me. वो निर्माण करने वाला मुझ में स्वयं है। So that I have that builder in me. कि वो निर्माण करने वाला मुझ में I है। will be built. मैं निर्माण करूंगी And I will build others. और मैं दूसरों का भी निर्माण करूंगी। Amen. Amen. Hallelujah. Hey, Jesus. Amen. Oh, I will build and you will build through me. और परमेश्वर मैं Yeshua, निर्माण Amen. करूंगी। Yeshua, I will build and you will build through. मैं निर्माण करूंगी और आप मेरे द्वारा निर्माण करोगे प्रभु। Amen. Amen. So it is the precious gift from my Father और ये अद्भुत वरदान है मेरे पिता के द्वारा which will build me. जो मुझे निर्माण करेगा, Which will build me. जो मेरा निर्माण करेगा। Doesn't matter what's happening to me now. कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। He is building me. वो मेरा निर्माण कर रहा है। He is building me. वो मेरा निर्माण कर रहा है। I will tell you the second thing. मैं अब आपको दूसरी बात बताऊंगी। What is the second thing which help us to build? दूसरी बात क्या है Which help us to build जो हमारी सहायता करता है निर्माण करने के लिए? through knowledge of this builder. जो हमारी सहायता करता है निर्माण करने के लिए जो- ज्ञान के द्वारा। Amen. 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 The knowledge of Him. परमेश्वर की नौ ज्ञान के द्वारा। Amen. Amen. Do you know? Until I have the knowledge, आपको पता है जब तक मेरे पास ज्ञान है, until I have the knowledge, जब तक मेरे पास ज्ञान है, जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है, I cannot be built. until I don't have the knowledge, मैं बिल्ड नहीं कर सकती, मैं निर्माण नहीं कर सकती। Right, Galatia?
सही है कलीसिया? Until I don't have knowledge, I जब तक मेरे cannot पास build. ज्ञान नहीं है मैं निर्माण नहीं कर सकती। Knowledge of what? ज्ञान कौन सा? वो knowledge of what? ज्ञान कौन सा? Knowledge of what? ज्ञान कौन सा? The knowledge of Him. परमेश्वर का ज्ञान, The knowledge of Him. परमेश्वर का ज्ञान, The knowledge of this builder. परमेश्वर के ज्ञान का निर्माण। Hallelujah. हालेलुया। The knowledge which help us to build. वो ज्ञान जो हमारी सहायता करता है निर्माण करने के लिए। And और when we have this knowledge, और जब हमारे पास ये ज्ञान होता है then फिर this Holy Spirit ये पवित्र आत्मा start working कार्य करना शुरू करते हैं in our midst, हमारे मध्य में, in our midst, हमारे मध्य में, in the chaos and confusions. सभी गड़बड़ियों के बीच में। When we have the knowledge of this builder, जब हमारे पास ज्ञान का निर्माण करने का ज्ञान होता है, जब हमारे पास निर्माण करने वाले का ज्ञान होगा, what we will do? हम क्या करेंगे? When we have this knowledge of builder, what we will do? जब हमारे पास निर्माण करने वाले का ज्ञान होगा हम क्या करेंगे? We will thrive in our chaos and confusions. हम कोशिश करेंगे हमारी गड़बड़ियों में भी। हम विजयी होंगे अपने गड़बड़ियों में भी। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, let's read 14:17 once again. The Spirit of truth, the world cannot accept Him, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. You have this knowledge that you have this builder who is in you and who is with you, who is building you. Doesn't matter what's going on right now. Hallelujah. आपके पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान है परमेश्वर का जो आप में और आपके द्वारा निर्माण कर रहा है। कुछ मायने नहीं रखता क्या हो रहा है, लेकिन वो निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। हिंदी में ऐसे लिखा है ये आयत, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमेन। कौन जानता है? Who knows? तुम जानते हो। You know. कौन जानता है? Who knows? You know. तुम जानते हो। Amen. Amen. Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? Is it so beautiful ये बहुत बेहतर है that I know this precious Holy कि Spirit? मैं इस पवित्र आत्मा को जानती हूँ। I have knowledge of this precious Holy Spirit. मेरे पास इस बहुमूल्य पवित्र आत्मा का वरदान है। But what happened to us लेकिन हमारे साथ क्या होता है when we face जब हम सामना करते हैं a sudden अचानक से situation, परिस्थितियों का, a sudden अचानक से chaos, गड़बड़ियों का, a sudden अचानक से confusion, गड़बड़ियों का, a sudden अचानक से my fall? मेरा गिरना? What happened? क्या होगा? What happened? क्या होगा? I am not able to remind myself मैं अपने आप को याद नहीं करा पा रही हूँ that I am not able to remind myself that I have this person with me. मैं अपने आप को ये स्मरण नहीं करा पा रही हूँ कि ये व्यक्ति मेरे साथ है। हालेलुया। There is some gap. इसमें कुछ There is some gap. इसमें कुछ गैप है, There is some gap इसमें कुछ जगह है in between बीच में this knowledge ये ज्ञान, that the builder is with me. इसमें कुछ अंतर है इस ज्ञान में कि ये निर्माण करने वाला निर्माण कर रहा है। There is a gap in my understanding. इस मेरे ज्ञान में कुछ अंतर है। There is a gap.
कुछ अंतर है, There is a loopholes कुछ अंतर है, when I am unable to remind myself. कुछ गड़बड़ी है जब मैं अपने आप को स्मरण नहीं करा पा रही हूँ, When I face certain things जब मैं अचानक से उन परिस्थितियों का सामना करती हूँ, and my mouth opens like anything. फिर मेरा माई माउथ My फिर mouth. मेरा मुंह ऐसे ही खुल जाता है। Do you know what is this? आप जानते हैं ये क्या है? Through opening of my eyes. मेरी आत्माओं के खुलने के द्वारा, मेरी आत्मिक आंखों का खुलना. मेरी आत्मिक आंखों के खुलने के द्वारा। Do you know what is this gap? आपको पता है ये अंतर क्या है? The opening of my eyes. ये अंतर है मेरी आंखों के खुलना, The opening of eyes आंखों का खुलना in the midst, सभी बातों के बीच में, in the midst of all problems, सभी समस्याओं के बीच में, in the midst of all confusions, सभी गड़बड़ियों के बीच में, in the midst of all situations, सभी परिस्थितियों के बीच में, He will open my eyes. वो मेरी आंखों को खोलेगा। Amen. 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 Hallelujah. 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 Doesn't matter what, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या, but if you will stop for few seconds, पर जब आप कुछ समय के लिए रोक दोगे, जब आप कुछ समय के लिए रुक जाओगे, उस कियोस, उस गड़बड़ी में, कियोस का एग्जैक्ट मतलब गड़बड़ी, कियोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट कियोस इन भगदड़. If you will stop for few seconds in the chaos, अगर आप उस भगदड़ में कुछ सेकंड के लिए रुक जाओगे, if you will stop अगर आप रुक जाओगे in that confusion उस गड़बड़ी में रुक जाओ अगर आप, and ask और पूछो अपने आप से, ask to yourself, Lord, you are in me. प्रभु आप मुझ में हो, Lord, you are with me. प्रभु आप मेरे साथ हो। He is able to open your eyes to see from the eyes of the Lord Jesus Christ. Amen. उन्होंने आपकी आंखें खोली हैं कि आप देख पाओ। He is able to open your eyes in that chaos and वो योग्य है आपकी confusion. आंखों को When खोलने you के will लिए उस wait भगदड़ में भी, and ask, remind yourself, because you have this knowledge, right? क्योंकि You आपके have पास this ये ज्ञान knowledge. है। You have this knowledge that that builder is with me. आपके पास ये ज्ञान है जो स्वयं आप में रहता है, बसता है। And when you face anything, और जब आप कुछ भी सामना करते हो, not for a minute. सिर्फ एक क्षण I'm- के लिए नहीं, I'm not saying not for a minute. I'm saying for a seconds. मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ एक क्षण के लिए, पर मैं ये कह रही हूँ एक मिनट के लिए। Just stop, सिर्फ रुक जाओ and He will open your eyes to see. और वो आपकी आंखों को खोलेगा देखने के He लिए। will open your eyes और, to see. और वो आपकी आंखों को खोलेंगे He देखने के will लिए। open your eyes to see. वो आपकी आंखों को खोलेंगे देखने के लिए। Ishwara, there was a time, in a Bible, when बाइबल में एक आयत है, मैं जानती हूँ, जब there is a time in Bible when there was a lack of bread and lack of fish, right? बाइबल Everyone, में एक आयत है जहाँ पर मछलियों की घटी थी and bread की और रोटी की घटी थी। एक scripture है, everyone knows, right? That there was lack of bread and lack of fish, and people are so many, more than 5,000. और बाइबल में ये वचन है कि वहाँ पर मछली और रोटी की घटी थी, परंतु जनता बहुत थी। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ था? Let's read John chapter 14:26. आइए पढ़े यूहन्ना का अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को। 14वां अध्याय 26वीं आयत को। Let's see in a screen, those who can see in a screen.
and read with me slowly and with understanding. आइए स्क्रीन पर देखें और मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ें। But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Amen. आमेन। देखिए ऐसे What will लिखा है happen? हिंदी में ऐसे है। What will happen? और क्या होगा? Yes, sister, please read Hindi. हिंदी में ऐसे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। What will? आमेन Amen. आमेन। क्या कराएगा? स्मरण कराएगा, क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या कराएगा? सिखाएगा। क्या कराएगा? सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। Who is our teacher? आपका अध्यापक कौन है? Who is our builder? Who is your teacher here? आपका अध्यापक कौन है यहाँ पे? Who is helping you to teach? आपको कौन मदद कर रहा है यहाँ सिखाने के लिए? आगे वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब स्मरण कराएगा। क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। क्या कराएगा सौरभ? रिमाइंड। स्मरण कराएगा। Amen. याद Amen. दिलाएगा। हालेलुया। याद दिलाएगा तुम्हें। You will not die, you shall live. Hallelujah, you will not die, you shall आप live. मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे। He will remind you. वो आपको स्मरण He will कराएगा। remind वो you आपको स्मरण कराएगा that there is no lack. कि अब वहाँ पर कोई घटी नहीं है। You are seeing teacher. आप रसोई को देख रहे हो, You are seeing teacher आप अध्यापक को देख रहे हो। in the midst of lack of bread, सभी रोटी की घटियों में, in the lack of fish. मछली की घटियों में People are so many. लोग बहुत सारे हैं। You will not see lack. आप घटी को नहीं देखोगे। What will you see? आप क्या देखोगे? Teacher, अध्यापक। the builder. अध्यापक। What happened to them? They see teacher. Jesus is with me. Oh, क्या हुआ? उन्होंने अध्यापक को देखा, यीशु मसीह हमारे साथ है। Father, Son, and Holy Spirit, they are one. They are पिता, God. पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। Amen. आमेन। You will see teacher in the midst. आप अध्यापक को देखोगे सभी बातों के मध्य में। Hallelujah. हालेलुया। He will remind you. वो आपको स्मरण कराएंगे। He will remind you. वो आपको स्मरण कराएंगे। Do you know what? आपको पता है क्या? There must be यहाँ पर होना चाहिए, realization. आपको ये एहसास होना चाहिए, There must be. आपको ये एहसास होना चाहिए, There must be आपको ये एहसास होना चाहिए, realization. एहसास होना चाहिए। There must be यहाँ पर आपको एहसास होना चाहिए। hidden, which was hidden is no more hidden. जो गुप्त में है, जो छिपा हुआ है, अब और छिपा हुआ नहीं है। Hidden, which was hidden is no more hidden. जो छिपा हुआ था अब वो छिपा हुआ नहीं है। वो सत्य, वो पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है वो मुझे रिवील हुआ है, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे फादर ने मुझे वो दिया। The Holy Spirit is revealed unto me because my Father has given this to me. एक तोहफे की तरह। To build us. निर्माण करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Yeshua rasa. शखांदरे। So when your eyes will open, तो जब आपकी आंखें खुलेंगी, you will have this knowledge आपके पास ये ज्ञान होगा that God is here. When God decided you to bring
out from the situation, जब परमेश्वर ये निश्चित कर लेते हैं आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, you will have knowledge in your spirit. आपकी आत्मा में आप ज्ञान को देखोगे। Amen. आमेन। You will have the knowledge in your spirit. आप अपनी आत्मा में ज्ञान को देखोगे। There is a knowledge. यहाँ एक ज्ञान है, There is understanding यहाँ एक समझ है that goes ahead of your deliverance. जो आपके छुटकारे से पहले चलती है। Amen. आमेन। Let's read John chapter 16 verse 13. आइए यूहन्ना का 16वां अध्याय पढ़े और 13वीं आयत। Yes, read first in Hindi, sister. देखिए यूहन्ना का 16वां अध्याय 13वीं आयत हिंदी में इस प्रकार कहती है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Amen. आमेन। Sister, one more time. Increase the mic of volume of the mic. I want you, all of you, to listen very carefully this. देखिए ऐसे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो क्या करेगा? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। What he will do? क्या करेगा? What he will do? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Hallelujah. Hallelujah. When he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. जब सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। He will not speak on his own. वो अपने स्वयं की बातें नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? स्वयं की कंफ्यूज मत होना, वो स्वयं की बातें नहीं कहेगा। But what he will do? परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whatever he will listen, he will speak. Let's read 14, sister, verse 14. देखिए जो कुछ भी वो सुनेंगे वो ही कहेंगे, और 14वीं आयत में कहा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Amen. Hallelujah. महिमा। Amen. शैतान अपनी महिमा करवाना चाहता है। शैतान अपनी महिमा करवाना चाहता है। The devil wants to glorify himself. तुम क्या करोगे? What will you do? तुम क्या करोगे? What will you do? क्या करोगे? What will you do? उसकी महिमा। Glorify him. Hallelujah. 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 He will come, he will speak what he hears, he will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Who is speaking? कौन यहाँ बातें कर रहा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो सुनेगा वही कहेगा। 14 वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी महिमा करेगा। Who is speaking to whom? कौन यहाँ पर किससे बातें कर रहा है? Jesus. यीशु। I will glorify God through him, for him, because Amen. he is Amen. with me Amen. Amen. and in me. You will break the stronghold of Amen. Satan because you will glorify him. Amen. Amen. आप उनकी महिमा Amen. करोगे Amen. परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा आप उनकी महिमा करोगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Let's read Ezekiel आइए यहेजकेल की पुस्तक से पढ़ें 1 verse 28. पहला अध्याय यहेजकेल पहला अध्याय Verse 28. उसकी 28वीं आयत ऐसे लिखी है। Yes, sister, please. उसका पहला अध्याय 28वीं आयत। Yes, please. Read in Hindi. जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया। तब मैंने एक शब्द सुना और जैसे कोई बातें करता है। आमीन। क्या हुआ यहाँ एजिकल के साथ? यहाँ- Everyone knows Ezekiel was the prophet, right? आप सबको पता है यहेजकेल एक नबी था। Ezekiel was the prophet. He Ye- sees visions. यहेजकेल एक नबी था, वो दर्शनों को देखा करता था And Lord speak to him in visions. और परमेश्वर उससे दर्शनों में बातें किया करते थे। What is written, sister? Once again. जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उससे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया। तब यहोवा के तेज का रूप ऐसा था कि मैं उसे देखकर मुंह के बल गिर गया। यहोवा के तेज का रूप ऐसा था कि किसके फेस का तेज कैसा था? यहोवा के तेज का रूप Like the appearance of a rainbow in the clouds on a rainy day. और वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, So was the radiance around him. वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। Next Hallelujah. verse, 2 verse 1. उसका Ezekiel 2 verse 1. यहेजकेल दूसरा पहला उसका ऐसे है, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When Ezekiel जब यहेजकेल के सामने यहोवा प्रकट हुआ, उसका तेज कैसा था? Let's read in English once. Like the appearance of a rainbow in the clouds of a rainy day, so was the radiance around him. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. आमीन। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का Come on, प्रकाश दिखाई church. देता है। Imagine your father now. This is the time to forget your problem. This is the time to forget your situation. This is the time to forget your confusion. Galatia But this is a में- time to remind the radiance, the glory of the Father, the glory of the Lord. Amen. Hallelujah. Galatia में Yeshua Mama Tsararara. Let's clap for the Lord in the आइए name प्रभु of के लिए Lord तालियां Jesus. बजाएं। We are so comfortable in our problems to glorify our everyday problem, to glorify our confusions. But this is the time to glorify your Lord. This is the time. Let's stand in your feet, people of God, अपने and स्थानों clap पे for खड़े होइए। Him. And this is the अपने स्थानों time. पे If खड़े you are होइए। getting this, what this verse is trying to say, you cannot even sit, but you will rise अगर आप समझ and रहे you हो, will ये आयत clap. क्या You कह will रही है आपसे? shout for the Lord, because when Ezekiel see this in his vision, he was unable to stand, but he Amen. fall face down on the ground Hallelujah. because of his glory. Hallelujah. जब यहेजकेल इस दर्शन को देख रहा था, वो खड़े नहीं हो पा रहा था अपने पांवों पे। Hey, hey,
You will not fall down because of Satan's glory, but you will fall down because of His glory. In the name of आप Lord शैतान की Jesus. महिमा की वजह से नहीं गिरोगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा की वजह से गिरोगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Oh, Kalisha. कलीसिया चर्च Oh, शिखेंदे, forget the problems. अपनी समस्याओं को भूल जाओ। And I believe और मैं विश्वास रखती हूँ, many are seeing visions. मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग दर्शन please be देखते seated. हैं। I believe many sees visions. प्लीज बैठ जाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोग दर्शन देखते हैं। I believe many sees dreams. मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग सपनों को देखते हैं। What happened when you see visions? क्या होता है जब आप दर्शनों को देखते हो? Okay, before than that, I should add, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, what we do? वो क्या करते हैं? Many of you see visions. आप में से बहुत से लोग दर्शनों को देखते I हैं। see visions a lot. आप दर्शनों को देखते हैं। Lord speaks to me through visions a lot. प्रभु मुझसे दर्शनों के द्वारा बहुत बातें करते हैं। Lord speak to me through dreams a lot. प्रभु मुझसे दर्शनों के द्वारा बातें I करते believe हैं। many are seeing visions. मैं during विश्वास prayer. करती हूँ बहुत से लोग दर्शन देख रहे हैं। This is what happened to the Ezekiel. यही यहेजकेल के साथ हुआ था। When he was seeing vision, जब वो दर्शनों को देख रहा था, he sees the appearance like a rainbow. वो उस इंद्रधनुष की को प्रकट होने को देख रहा था। In the cloud, बादलों में, in a rainy day, बारिश में। so was the radiance. So was the radiance of his presence. तो वही ऐसी उनकी उपस्थिति थी। This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रगटीकरण था। And what he said, when I saw it, और जब उसने क्या कहा कि जब मैंने देखा, I fell face down. मैं गिर गया And I heard the voice. और मैंने आवाज को सुना। क्या सुना सागर उसने? क्या सुना था सागर? When he fall face down, जब वो अपने कदमों पर गिर गया था, उसने क्या सुना था? he heard the voice. उसने आवाज को सुना था। उसने एक आवाज सुनी। Amen. He heard the voice. क्या बोला उस आवाज ने? क्या बोला था उससे परमेश्वर ने? When we see visions, जब हम दर्शनों को देखते हैं, listen carefully, this is a very secret how देखिए to ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भेद की बात है। what makes to take our next step. हमारे को क्या वो होता है कि हम दूसरा कदम उठाएं। When we in the prayer, everyone prays, I believe, right? हर कोई प्रार्थना करता है अपने सीक्रेट प्लेस में। मैं इस चीज पे विश्वास रखती हूँ कलीसिया। Amen. आमेन। And when we see vision, और जब हम दर्शनों को देखते हैं, or and we fell on the ground, और जब हम नीचे गिर जाते हैं, अगर कोई नहीं गिरता तो अपने आप को रोको मत गिरने से, because that is the presence of God, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति है which you cannot hold. जो आप रोक नहीं सकते हो। And if you are holding, और अगर आप रोक रहे हो, something try to pull you down not to experience कोई that presence. कुछ तो आपको रोक रहा है कि आप गिरो ना और आप उनकी उपस्थिति का अनुभव ना लो। Because when you fell down in his presence, जब आप उनकी उपस्थिति में गिरते हो, you will hear the voice. आप आवाज को सुनोगे उनकी। You will hear the voice. आप आवाज को सुनोगे उनकी। I will hear the voice. मैं आवाज को सुनूंगी। I will hear the voice. मैं आवाज को सुनूंगी। And what that voice says? और वो आवाज क्या कहती है? Ezekiel 2 verse 2, 1 and 2. यहेजकेल पहला दूसरा, वह यहेजकेल दूसरा पहला, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। किसी को समझ आया? Did anybody understood? मेरे हाथ में अगर माइक नहीं होता तो I could clap like anything. अगर मेरे हाथ में माइक नहीं होता तो मैं पागलों की तरह तालियां बजा रही होती।
Now I can understood we should buy a cordless for Pastor Augustine and Pastor Sapna. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। अब मुझे समझ में आ रहा है हमें हमारे पास्टर अगस्तिन और पास्टर सपना के लिए कॉर्डलेस माइक क्यों खरीदना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। He said to me, उन्होंने मुझसे कहा, Son of man, मनुष्य के संतान, stand up अपने पांवों पर खड़ा हो, on your feet. अपने पांवों के बल खड़ा हो, Stand up खड़े हो जा, on your feet. अपने पांवों पर। हालेलुया, हालेलुया। To listen to him. This man, he is speaking to you right now. If you will not stop yourself, he will reveal his glory to you. Amen. परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि अगर आप He will स्वयं speak से to खड़े you. नहीं He होंगे, will open everything before you and you will see. Amen. वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो अपनी महिमा को आप पे प्रकट करें। अब अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं And he will speak to you. और वो आपसे बातें करेंगे। As he spoke, और जैसे उन्होंने कहा, the Spirit came into me पवित्र आत्मा मुझ पे आया and raised me और मुझे खड़ा किया to my feet. मेरे पांव के बल पर। And I heard him speaking to me. और मैंने सुना कि वो मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कौन आया? Who came? कौन आया? Who came? When I stood, who came? जब मैं खड़ी हुई तो कौन आया? The Spirit होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, came into me पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा and raised me और मुझे खड़ा किया to my feet. मेरे पांव के बल पर। And I heard him और मैंने उनको सुना, speaking to मुझसे बातें कर रहे हैं, me. मुझसे बातें कर रहे हैं। Not speaking to my padosi, मेरे नेबर से बात नहीं कर रहे हैं, speaking to me. मुझसे बातें कर रहे हैं। Let's read Acts chapter 2, आइए verse 17. प्रेरितों का दूसरा अध्याय पढ़े। I think Acts chapter 2. प्रेरितों के कामों का दूसरा अध्याय, 1 and 2. प्रेरितों के दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा। जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब के एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। When the day of Pentecost came, what happened? जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो क्या हुआ? पूरा घर कांप गया दोस्तों, पूरा घर कांप गया। When you will pray in your secret place and when His glory will come upon you, you will thrive in the name जब of आप Lord अपनी Jesus. कोठरी में खड़े होगे, प्रार्थना करोगे तो आप उनको पाओगे। Second, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. और अचानक से एकाएक बड़ी आंधी सी की सनसनाहट का शब्द हुआ And filled the whole house where they were sitting. और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। Who is this amazing person? कौन है ये बेहतर व्यक्ति? He is our builder. कौन है ये निर्माण करने वाला? He is our builder. वो हमारा कौन निर्माण उतर करने आया वाला है। तेरे घर में मेरे को बनाने के लिए? Who came to build me? परमेश्वर उतर आया हेवन से मुझे बनाने के लिए। God came to build me from heaven. उस जगह जब मैं पढ़ा था, उसमें हमने उस ग्लोरी में, उसकी ग्लोरी के सामने मैं उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अपने बोझ में दबा हुआ था। Before His glory, I could not stand because I was burdened in myself. But the Spirit came पर जब पवित्र आत्मा आया into me मुझ में and raised me और मुझे खड़ा किया to my feet, मेरे पांव पर, and I heard Him speaking to और me. मैंने उनको सुना मुझसे बातें करते हुए। What is written in Acts chapter 2:14? प्रेरितों के दूसरा अध्याय में उसकी 14वीं आयत ऐसा लिखा है, Who stood up? कौन खड़ा हुआ? Who stood up? कौन खड़ा हुआ? कौन है ये भाई? देखो इसे। पीटर खड़ा हो गया भाई। पतरस खड़ा हो गया। Everyone knows the story of Peter.
सबको पतरस की कहानी पता है। When he was with Jesus, how hasty was he? जब वो यीशु के साथ था वो कैसा था? The Peter stood up with the 11, raised his voice. पतरस खड़ा हुआ 11 दिन के लिए वहां 11 पर। जनों के साथ उसके 11 right the 11 11 लोगों के साथ वो वहां पर ऊंचे शब्द से खड़ा हुआ। How कहने many लगा। disciples Jesus have? Peter stood and 11. जुडास नहीं है यहाँ पे, मथायस है, everyone knows. पतरस वहां 11 के साथ खड़ा हुआ Raised his voice और ऊंचे शब्द से कहने लगा and addressed a crowd. कि हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कान लगाकर मेरी बातें सुनो. Now he spoke about the secret of heaven. अब उसने बातें करी स्वर्ग के भेदों के विषय में। Nothing will be impossible for us to speak about the Lord when He will come upon me. I will stood up, I will listen to Him, and I will speak. हमारे लिए कुछ भी Amen. असंभव नहीं होगा जब उनका आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा। हम उनके विषय में बातें करेंगे, हम खड़े होएंगे और उनके बारे में बातें करेंंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is building us. वो हमारा निर्माण कर रहे He हैं। has built Peter. उन्होंने पतरस का निर्माण किया। He has built Peter. उन्होंने पतरस का निर्माण किया। The Peter, पतरस he was the fisherman, वो एक मछली को पकड़ने वाला व्यक्ति था, but he became पर a वो mighty weapon एक सामर्थी हथियार बना for His kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए। When Jesus died and rose again, जब परमेश्वर मरे और फिर से तीसरे दिन जिंदा हुए, He spread the gospel. उसने सुसमाचार को फैलाया। No one can stop us. उसको हमें कोई नहीं रोक सकता। When you will be in your secret place and face down on the floor, जब आप अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना करोगे, अपने कदमों पे गिर जाओगे, Holy Spirit will raise you पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा from your burden. आपके बोझों से। He will raise you on your feet. आपके कदमों पे वो आपको खड़ा करेंगे। He will speak to you. वो आपसे बातें करेंगे। He will speak to you. वो आपसे बातें करेंगे। He will reveal the mysteries. वो आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेंगे। He will reveal the mysteries. वो आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेंगे And you will speak about His kingdom. और वो आप उनके राज्य के बारे में बातें करोगे। He is building you to speak about His वो kingdom. आपका निर्माण कर रहे हैं कि आप उनके राज्य के बारे में बातें करो। Hallelujah. हालेलुया। Your mouth will not be shut आपका मुंह बंद नहीं रहेगा anymore. और अब You will speak about His kingdom. आप उनके राज्य के विषय में बातें करोगे। Wherever you will go, जहाँ कहीं भी आप जाओगे, you will not talk about your problem. आप अपनी स्वयं की समस्याओं के विषय में बातें नहीं करोगे। As you have received freedom, जैसे आपने स्वतंत्रता को ग्रहण किया है, you will speak about freedom. आप स्वतंत्रता के विषय में बातें करोगे। Your mouth will not be shut anymore. आपका मुंह अब और बंद नहीं रहेगा। You will speak about His love. आप उसके प्रेम के विषय में बातें करोगे। He is building me. वो मेरा निर्माण कर रहे हैं। He is building me. वो मेरा निर्माण कर रहे हैं। What Lord has said. परमेश्वर ने क्या कहा? Acts chapter 2 verse 17. प्रेरितों का अध्याय 2 और 17वीं आयत। In the last days God says, अंत के दिनों में परमेश्वर कहते हैं, I will pour out my spirit on all people. मैं अपनी आत्मा में से तुम सब लोगों पर उंडेलूंगा। Your sons and daughters will और prophesy. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। Your young will see visions. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Your old man will dream dreams. और Hallelujah. तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। No one can stop you to dream कोई नहीं dreams. रोक सकता No one आपको। can stop you to prophesy. आपको कोई No नहीं रोक one can सकता stop you नबूवत to करने see से। visions. आपको कोई No नहीं रोक one, सकता nothing can दर्शन stop. देखने से। Hallelujah. In the आपको name कोई of नहीं रोक Jesus. सकता He नबूवत is करने से। building. He has come
come to build me. He आए has हैं come हमारा to build निर्माण you. करने के लिए। वो हमारा निर्माण करने के लिए आए हैं। Oh Jesus, thank you Father. People of God, I can sense His presence. Oh, if you could rise and clap for Him for 30 seconds and receive this. When the Spirit of Lord comes, oh, I will prophesy, I will dream dreams, I will see visions. Oh, I will receive this. Hallelujah. आप दर्शन देखोगे। धन्यवाद यीशु। Oh Lord is building you for this generation. Oh, to take your place. Oh, with selfless faith. Hey, Lord is building you. Oh, Lord is building you to take your place with selfless faith for this generation. आपका निर्माण कर रहे हैं। You are called to fix the problem. आप बुलाए गए हो समस्याओं का समाधान करने। You are called to fix the problem. आप बुलाए गए हो समस्याओं का समाधान करने के लिए। You are not a problem. आप मुसीबत नहीं हो। You are called to fix the problem. आप बुलाए गए हो समस्याओं का समाधान करने के लिए। You are not a problem. आप प्रॉब्लम नहीं हो। You are not a problem आप creator. समस्या नहीं हो, आप बनाने वाले हो। Amen. हालेलुया। You are not a problem. आप अपने आप मुसीबत से नहीं हो। बोलो मैं परेशानी नहीं। Tell yourself that you are not a problem. I am a solution. मैं समाधान हूँ। You know what? आपको पता है क्या? Holy Spirit knows His job. पवित्र आत्मा को अपना कार्य पता है। Holy Spirit knows His job. पवित्र आत्मा को उनका कार्य पता है। क्या आंटी किरण को अपना काम पता है? पता है? Auntie is a mom. She knows what to do, how to raise kids, how to feed them, whatever. She knows. किरण आंटी को पता है उनको अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है, अपना कार्य कैसे करना है, जो भी है किरण आंटी को पता है। काजल knows her job. काजल को अपना कार्य पता है। Jasmeer knows her job. जसमेर को अपना कार्य पता है। Sagar knows his office job. सागर को अपना ऑफिस का कार्य पता Sister है। Priyanka knows her job. बहन प्रियंका को उसका कार्य पता है। Sister Lakshmi knows the job. बहन लक्ष्मी को अपना कार्य पता है। Sister Asha knows the job. बहन आशा को अपना कार्य पता है। Our sister Akansha knows the बहन job. आकांक्षा को अपना कार्य पता है। Rupam knows her job. रूपम को अपना कार्य पता है। Sister Mamta knows her job. बहन ममता को अपना कार्य पता है। Brother Ashu knows her job. भाई आशु को अपना कार्य पता है। Sister Sandhya knows her job. बहन संध्या को अपना कार्य पता है। Brother Saurabh knows his job. भाई सौरभ को अपना कार्य पता है। Lata knows her job. Lata knows her बहन job. लता को अपना कार्य पता है। Sister Sheila knows her job. बहन शीला को अपना कार्य पता Brother है। Vijay knows his job. भाई विजय को अपना कार्य पता है। Brother Jay knows. भाई जय को अपना कार्य पता है। Sister Upasna knows her बहन job. उपासना को अपना कार्य पता है। I know my job. मुझे मेरा कार्य पता है। How does Holy Spirit not know his job? ये कैसे मुमकिन है कि पवित्र आत्मा को अपना कार्य नहीं पता? Hallelujah. He knows हालेलुया, हालेलुया। He knows his job. उनको अपना कार्य पता है। He equips us. वो हमारा निर्माण करते हैं। He equips us वो हमें तैयार करते हैं with the weapons. हथियारों के द्वारा। He equips us वो हमारा निर्माण करते हैं with the weapons. हथियारों के द्वारा। Do you know what is this weapon? आपको पता है ये हथियार कौन से हैं? चलो let's read 2 Corinthians 10 verse 4. आइए दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4थी आयत ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। Hallelujah!
पवित्र आत्मा को अपना कार्य पता है। to bring out the stronghold. घड़ों को उखाड़ फेंकना है। पर गढ़ों को ढा देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Aha. When I heard this, जब मैंने ये सुना, when I read this word, जब मैंने ये वचन को पढ़ा, I was filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भर गई। I was shouting like anything. मैं चिल्ला रही थी घड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए। गढ़ों को ढा देने के लिए। यीशु मसीह is building me. Hallelujah. इसमें निर्माण कर रहे हैं। शेखंदा रे 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 रे। शैतान, तेरी उपस्थिति और नहीं होगी इस जीवन में। Amen. Satan, your presence will not be anymore in this life. Akhandare khendere, shakhandare yanda. You will demolish the stronghold. आप गढ़ों को ढा दोगे। You will demolish the आप stronghold. गढ़ों को उखाड़ फेंकोगे। You will demolish the stronghold. आप गढ़ों को ढा दोगे। The Holy Spirit will give you the knowledge of stronghold. I am telling you, people of God. पवित्र आत्मा आपको बंधनों का नॉलेज देगा और उनको तोड़ने का भी। I am telling you, people of God, Holy Spirit will give you the knowledge. मैं कह रही हूँ परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देगा। The stronghold which you have to demolish right वो now. गढ़ जो आपको ढाने हैं। हालेलुया। जो गढ़ आपको उखाड़ना है, उसका ज्ञान पवित्र आत्मा तुझे देगा। वो तुझे जब तू उस कोठी में प्रार्थना कर रहा होगा, When you will pray in your hidden place, and you will be face down on the floor, Lord और help me. जब आप गिर जाओगे अपने कदमों पे, He will raise you on your feet आपको उठाएगा वो आपके कदमों पे, and He will speak to you वो आपसे बातें करेंगे। and tell you, मैं आपको बता रही हूँ, this is the stronghold. Demolish right now in the name of Lord एक Jesus. बड़ा बंधन है जो अभी टूट रहा है। हालेलुया। शखांदा रे खेंदे रे, खेंदे रे 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 रे, शखांदा रे खेंदे रे रे, शांदरिया, शांदा रे खेंदे रे 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 रे। Do you know, आपको पता है, I see many visions. मैं बहुत से दर्शनों को देखती हूँ, I see many dreams. मैं बहुत सपनों को देखती हूँ। I can enter in that secret place anytime. मैं अपने कोठरी में किसी भी समय प्रवेश कर सकती हूँ। Doesn't matter I am traveling in a metro. कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मेट्रो में यात्रा कर रही Doesn't हूँ। matter I am sitting in the church. कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कलीसिया में बैठी हूँ। Doesn't matter I am between the family, among the family कुछ फर्क members. नहीं पड़ता मैं परिवार के बीच में हूँ। I entered in that secret place. मैं उस कोठरी के स्थान में प्रवेश कर लेती हूँ And Lord starts speaking to me at that point of time. और परमेश्वर मुझसे बातें करना शुरू कर देते हैं उस क्षण में, उसी समय उसी समय He start speaking to me. वो मुझसे बातें करना शुरू करते हैं उसी क्षण में, And He corrects me. और वो मुझे सही करते हैं, He guides me. वो मुझे दिशा दिखाते हैं, He tell me this way you need to go. वो मुझे बताते हैं कि इस मार्ग से तुझे जाना है In this way you need to talk to this person. और इस तरीके से तुझे इस व्यक्ति से बातें करनी है। Your behavior should be like this towards this person. आपका बर्ताव आपको बताएगा कि आपको कैसे इस व्यक्ति से बातें करनी है। उसी समय परमेश्वर मुझसे बात करना शुरू कर देता है। And that time only Lord starts speaking to me. And I asked Lord, और मैंने प्रभु से पूछा, this is difficult. ये बहुत मुश्किल है। And Lord's remind me, और प्रभु ने मुझे स्मरण कराया, you have Holy Spirit with you. तेरे पास पवित्र आत्मा है, तू कर सकती है। Nothing is impossible for you. कुछ भी असंभव नहीं है And तेरे at लिए। that, for a second, when I said, Lord, how it will happen, Lord reminds me, Holy Spirit is with you. Nothing is impossible for you. You will exploit in the name of Lord और Jesus. उसी क्षण जब मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये कैसे मुमकिन है, Oh, प्रभु he ने is मुझे building me. स्मरण करवाया, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तेरे इस बात कुछ भी नामुमकिन नहीं। Amen. हालेलुया, Amen. आमेन।
Many of the time, कई बार, most of the time, बहुत बार, or sometimes, और कभी कभी I think, मैं सोचती हूँ, Lord, प्रभु, if it is like this, और अगर ये इस तरीके से है, why certain situations क्यों कुछ समस्याएं or certain disease और क्यों कुछ परिस्थितियां और कुछ बीमारियां or this dream job, और ये दर्शन job, और ये नौकरी। नौकरी, why my family, क्यों मेरा परिवार, why these relatives क्यों ये रिश्तेदार, waiting for marriage, क्यों ये परिवार, ये रिश्तेदार शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, finance, पैसों का। my own nature irritates me a lot. मेरा ये बर्ताव मुझे बहुत चिड़चिड़ा कर देता है। Can't be resolved in quick. Or maximum you can take 1 day, 2 day, 3 day, 4 day. ये क्षण भर में समाधान नहीं हो पाता, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लेता है। चलो 3 महीने ले लो. ओके, टेक 3 months। Why? क्यों? If you are with me, you are in me. जब आप मेरे साथ हो, आप मुझ में हो, If everything is possible to me, अगर सब कुछ मुमकिन है मुझसे, then why certain situations and confusions तो फिर क्यों कुछ परिस्थितियां, कुछ ये गड़बड़ियां strikes me again and again? मुझे थका देती हैं बार बार। Why my nature irritates me? क्यों मेरा ये रवैया मुझे परेशान करता है. irritates me a lot? Why I fall in this place only? क्यों मैं इसी स्थान पे बार बार गिर जाती हूँ? Why I have to wait since decade? क्यों मुझे बार बार वे इंतजार करना पड़ता है? क्यों मुझे इंतजार करना पड़ रहा है 10 सालों से एक ही चीज के लिए? Why I have to wait since 10 years एक ही बात के लिए. for only one thing? And it's still going on. और ये अभी भी चल रहा है। Let's take the example of Daniel here. आइए दानिएल के जीवन से उदाहरण ले। Daniel chapter दानिएल अध्याय 2 verse 16. दानिएल अध्याय 2 उसकी 16वीं आयत। Yes. Those who can see on the screen, please read दानिएल with me. अध्याय 2 उसकी 16वीं आयत ऐसे। At this, Daniel went into the king and asked for time. Sister in Hindi. और दानिएल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, So that he might interpret the dream for him. तो वे महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। Once again. तो और दानिएल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। At this, Daniel went into the king और तब दानिएल ने भीतर जाकर राजा से विनती करी, and asked for time और तब दानिएल ने अपने घर जाकर so that he might interpret the dream for him. उसने प्रार्थना करी ताकि वो उस स्वप्न का फल उसको बता दे। Everyone knows हर किसी को पता है Daniel can interpret the dream, right? किसको नहीं पता यहाँ पे? कि दानिएल स्वप्नों का मतलब बता सकता था। कोई ऐसा है यहाँ जिसको डैनियल के बारे में नहीं पता कि वो सपनों का अर्थ बता सकता Is there था? anyone who does not know about Daniel that he could explain visions and dreams? डैनियल बता सकता, इंटरप्रेट कर सकता था. But what happened to Daniel when he goes to king?
क्या हुआ था दानियल के साथ जब वो राजा के उसमें गया बातें करने के लिए उसे? किंग ने डिक्री ऑर्डर कर दी थी ना, एवरीवन विल बी किल्ड, एवरी वाइज मैन विल बी किल्ड इफ विल नॉट इंटरप्रेट द ड्रीम. व्हाट विल हैपन? एवरीवन विल बी किल्ड. सो व्हाट डैनियल डिड, उसने हड़बड़ाया नहीं वहीं पे जाके कि नहीं नहीं मैं अभी करता हूँ, ओके आई विल डू इट. नो, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया था? ही आस्क्ड फॉर टाइम, उसने समय मांगा राजा से, so that he might interpret the dream for him. Hallelujah. ताकि वो उस स्वप्न का दर्शन का मतलब बता पाए राजा को. क्या कर पाए? स्वप्न का मतलब बता पाए. वो सपने का मतलब उस राजा को बता पाए, उसने उसके लिए समय मांगा. He Lord, asked for the time from king so that he could interpret the dream. Daniel asked for time. दानियल ने समय मांगा राजा से. I don't know now, मुझे अभी नहीं पता, but tomorrow I will know. लेकिन कल मैं बताऊंगा. I don't know now, मुझे अभी नहीं पता, but I will tell you tomorrow. पर मैं तुम्हें कल बताऊंगा. डैनियल को पता था कि वो इंटरप्रेट कर सकता है ड्रीम, but still he said, I don't know now, but I will tell you tomorrow. दानियल को पता था कि वो स्वप्न का मतलब बता सकता था, लेकिन फिर भी उसने राजा से समय मांगा और बोला कि मैं तुझे आज नहीं कल बताऊंगा. मतलब मैं इसको थोड़ा बोलती हूँ हिंदी में. डैनियल सपने को इंटरप्रेट कर सकता था, लेकिन इस सपने को नहीं, वो सपने इंटरप्रेट कर सकता था, लेकिन इस सपने के लिए उसने समय मांगा. One thing I know, एक चीज मुझे पता है, Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है. He is in me. वो मेरे अंदर One है. thing I know, एक बात मुझे पता है that Holy Spirit is in me. कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है. He is building me. वो मेरा निर्माण कर रहे हैं. Doesn't matter who I am today, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज क्या हूँ, but I will not be same tomorrow. पर मैं कल एक समान नहीं रहूंगी. I will not be same tomorrow. मैं एक समान नहीं रहूंगी. Doesn't matter what kind of creation I am today, कुछ फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार की रचना मैं आज हूँ, but I will not be same tomorrow. पर मैं कल एक समान नहीं रहूंगी. My builder is building me. मेरा निर्माण करने वाला मेरा निर्माण कर रहा No है. matter what situation I am facing today, कुछ फर्क नहीं पड़ता किन परिस्थितियों का सामना मैं आज कर but रही it हूँ, will not be same tomorrow. पर मैं कल एक समान नहीं रहूंगी. No matter what I am thinking today, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज क्या सोच रही हूँ, but I will not think same tomorrow. पर मैं कल भी सेम ही वैसा ही नहीं सोचूंगी. No matter where I am falling today, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज कहाँ गिर रही हूँ, but tomorrow I will not fall. लेकिन कल मैं नहीं गिरूंगी. हालेलुया, आमेन. No matter where I fall today, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज but कहाँ I गिरी will हूँ, not fall tomorrow. Hallelujah. पर मैं My कल नहीं builder is building me. पर मैं कल Hallelujah. मेरा निर्माण करने वाला मेरा निर्माण करने वाला है. No matter whether I have husband today or not, but tomorrow I will be. कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आज पति है या नहीं, लेकिन कल No matter I have wife today or not, but tomorrow I will have wife. कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आज बीवी है या नहीं, लेकिन कल मेरे पास बीवी निश्चय होगी. Amen. God Amen. will give the suitable co-worker Saurabh to you. Amen. Hallelujah. God will give you परमेश्वर, the Amen. suitable co-worker. परमेश्वर The आपको बीवी suitable देंगे. co-worker to you. Hallelujah. Hallelujah. Shivana Mama say, clap for Jesus. यीशुआ के लिए ताली बजाएं. You will not be same tomorrow. आप कल भी एक समान नहीं रहोगे. Mama, Shara, my builder is building me मेरा today. निर्माण करने वाला मेरा आज निर्माण कर रहा है. I will not be same मैं tomorrow. कल एक समान नहीं रहूंगी. I will not same tomorrow. कल भी एक समान नहीं Doesn't रहूंगी. matter, I am not able to forgive today, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आज आपको क्षमा कर पा रही हूँ या नहीं, but tomorrow I will forgive. लेकिन कल मैं आपको क्षमा कर
रहूंगी, I will not be same मैं tomorrow. कल भी एक समान नहीं रहूंगी, Because my builder is in me, I क्योंकि मेरा know. निर्माण करने वाला मेरे अंदर है, He is building me today. क्योंकि वो आज मेरा निर्माण कर रहा He है, is building me today. वो मेरा आज निर्माण कर रहा है। I might not have job today, आज मेरे पास शायद जो कार्य ना हो, नौकरी ना हो, but tomorrow I will have. पर कल मेरे पास निश्चय ही होगी। आमेन। Ask for the time. Tomorrow I will have. No matter my pocket is empty today. कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी जेब अगर आज खाली है, Tomorrow it will not be. कल ये खाली नहीं होगी। Amen. My builder is building me today. मेरा निर्माण करने वाला आज मेरा हालेलुया। No matter today I'm living in 2 BHK. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं 2 कमरे के घर में रह रही हूँ, Tomorrow I will live in Bangalore. कल मैं बेंगलोर में रहूंगी, Bangalore में कल मैं रहूंगी. बंगलो में रहूंगी। Hallelujah. हालेलुया। My Lord is building me today. मेरा प्रभु मेरा निर्माण आज कर रहा है। It's okay. Slip of tongue हो जाती है. Focus on sermon. Amen. Maybe Sister Upasana is prophesying for Bangalore. Amen. Okay. Amazing God. बहुत ही बेहतर है ये। क्या आप थक गए? क्या आर यू टायर्ड? आर यू टायर्ड? क्या आप थक गए? आर यू टायर्ड? If you want more, then we'll speak 5 minutes more. अगर आप और चाहते हो, मैं हम 5 मिनट और बात करेंगे। Hey, crazy for Jesus. Oh, you Jesus lovers. क्या आप यीशु के दीवाने हो? क्या आप यीशु के दीवाने हो? क्या आप यीशु के दीवाने हो? Thank you. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus for this धन्यवाद glorious यीशु। day. Oh Father. धन्यवाद पिता। No matter. कुछ फर्क नहीं पड़ता, Same problem is revisiting. अगर वो ही समस्याएं दोबारा आ रही हैं, एक बार, 1 टाइम, 2 बार, 2nd टाइम, तीसरी बार, 3rd टाइम, चौथी बार, 4th टाइम, 5वीं बार. 5th टाइम, But लेकिन not tomorrow. कल नहीं। Not Amen. tomorrow. कल नहीं। Not tomorrow. नहीं। कितनी भी बार परेशानी आए. Doesn't matter how many time problems come. Hallelujah. Hallelujah. But not tomorrow. लेकिन कल नहीं। My builder is building me. मेरा निर्माण करने वाला मेरा निर्माण कर रहा I है। will not be same मैं tomorrow. दोबारा एक समान नहीं होंगी। The disease which I am facing now will not be tomorrow. The disease which I am facing now, the pain which I am facing जो now, बीमारी मैं अभी सामना कर रही हूँ, जो the दर्द का मैं sorrow अभी which I सामना am कर रही facing हूँ, now, जो शांति जो मैं अभी सामना कर रही हूँ, जो दुख का, will not be tomorrow. वो कल नहीं होगा। Will not be tomorrow. वो कल नहीं होगा। Will not be tomorrow. वो कल नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Asharabahmasah. शखांदरे खेंदरे बेरे Oh, शियांदरे रे 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 Hallelujah, रे Jesus. शेखेंदरे बेरे रे 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 Yeshua. शेंदरे खेंदरे। धन्यवाद यीशु। People of God, परमेश्वर के लोगों, you have to be very observant. आपको बहुत ही Observant. आपको बहुत ही ध्यान लगा के देखना होगा. सोक. Observant. आपको बहुत ही ग्रहण करने वाला बनना होगा। Observant. ग्रहण करने वाला, Patient. धीरज रखने वाला। You must be trained gradually.
slowly to experience, discern His presence. आपको बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा उनकी उपस्थिति का परख रखने के लिए। You have to be very sensitive. आपको बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा। As a spiritual person, I have to be very sensitive. एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते आपको बहुत ही संवेदनशील होना होगा To discern, परख रखने के लिए, to understand and to hear the voice of the Holy Spirit. आपको परख रखने के लिए, आपको समझ और उनकी आवाज को सुनने के लिए। And who will do this? और ये कौन करेगा? कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? Who will do this? My builder will do it. मेरा निर्माण करने वाला ये My करेगा। builder will do it. मेरा निर्माण करने वाला ये करेगा। My builder will do मेरा it. निर्माण करने वाला ये करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Yeshua, before finishing, समाप्त करने से पहले I want to remind you मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ that He is कि the one कि वो ही एकमात्र हमें बना सकता है। कि वो ही एकमात्र शैतान हमारे पीछे है, एनिमी इज बिहाइंड अस खींचने के लिए हमें, टू बीट अस, गिराने के लिए जमीन पर, टू मेक अस फॉल डाउन, to kill us. हमें मारने के लिए। The only one, सिर्फ एकमात्र, the only one, God Himself, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। who is कौन है? in me, जो मुझ में है, with me, मेरे साथ है, to build me मेरा निर्माण करने के लिए on this earth, इस पृथ्वी पर, to pull heaven down on this earth, स्वर्ग को नीचे रख लाने के लिए पृथ्वी to पर, thrive on this earth, इस पृथ्वी पर करने के लिए, to perform miracles on this earth. इस पृथ्वी पर अद्भुत कामों को करने के लिए Only one, सिर्फ एकमात्र, only one सिर्फ एकमात्र who equips us from weapon, जो हमें भरता है हर एक उस हथियार से जो लड़ने के लिए जरूरी है इस धरती पर। आमेन। Don't think that you are a simple person. आप ये मत सोचो कि आप एक साधारण व्यक्ति हो। Don't think that you are just a Jasmeer, just a Kajal, आप ये मत सोचो कि Just आप a सिर्फ एक सागर। जसमेर और सिर्फ एक काजल हो, just Kiran auntie, सिर्फ किरण आंटी just हो, Lata, just सिर्फ Saurabh. लता, सिर्फ सौरभ। आप Just ये मत कल्पना। सोचो, सिर्फ कल्पना, We are not just. सिर्फ नहीं हो आप। Oh, we are so precious. हम बहुत ही कीमती हैं। We are so precious resources for His kingdom. हम बहुत ही कीमती स्रोत हैं उसके राज्य के लिए। He will not leave you like this on the earth. वो आपको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, He will not. वो आपको छोड़ नहीं देंगे। You are seeking Him. You are seeking Him. आप उनको खोज रहे हो, You are seeking Him and come behind Him. आप उनको खोज रहे हो और उनके पीछे आ रहे हो। आप उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पीछे आ चले। You are seeking him and coming behind और him. वो कौन सा सॉन्ग है, मुझे मुड़ने न दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। वो मुड़ने नहीं देगा दोस्तों, मुड़ने नहीं देगा। He is building you. वो आपका निर्माण कर रहे हैं। He is building you. वो आपका निर्माण कर रहे हैं। He is building you. वो आपका निर्माण कर रहे हैं। He is your friend. वो आपके दोस्त हैं। He is your friend. वो आपके दोस्त हैं। डैनियल जब वापस गया तो वो कुड़कुड़ाते हुए घर वापस नहीं गया था, बट वो जाते ही अपने दोस्तों से मिला, उसको सारी बात बताई दी और उनके साथ प्रार्थना की। Amen. We, our friend circle, our fellowship
We have to be very careful. हमारे दोस्तों की संगति, हमारी कलीसिया की संगति बहुत ही ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। I'm not saying that we are not meant to meet the people, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों से मिलने के लिए नहीं बनाए गए हैं, but our fellowship, our पर हमारी friendship, संगति और हमारी दोस्ती, मतलब जो हमारा इन्फ्लुएंस करने वाला ग्रुप होता है, जो हमारी संगति, हमारी दोस्ती, हमारे लोग, हमारा ग्रुप, हमारी मुठभेड़, जो हमें इन्फ्लुएंस करता है कुछ करने के लिए, जो हमें which influence help us. करता है। Yes, yes. When I was teenager, जब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि जो वो करते थे वो मैं करती थी। मैं किशोरावस्था में थी, मेरे दोस्त, हाँ, so whatever I do, I influenced by them. मैं जो भी करती थी मैं उनके द्वारा प्रभावित होके करती थी। Right? So we should be very careful about हमारे को बहुत ध्यानपूर्वक होने की जरूरत है। what is my fellowship? Where is my fellowship? मेरी Who is my संगति किनके fellowship? साथ है, मेरी संगति कौन सी है? Right? हालेलुया। Precious Holy Spirit. कीमती पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। दूसरी बात, I want to remind you मैं आपको स्मरण कराना that चाहती we हूँ have knowledge of Him. कि हमारे पास उनका ज्ञान है। पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे पास है। The knowledge of Holy Spirit we have. He will open my eyes. वो मेरी आंखों को खोलेंगे। He will tell me what is ahead. वो मुझे बताएंगे आने वाली बातों के विषय में। He will surely. वो मुझे दिखाएंगे। He will raise you up. वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Make you stand on your feet. वो आपके कदमों पर खड़ा करेंगे। Will talk to you. आपसे बातें करेंगे। Talk to you. आपसे बातें करेंगे। So इसलिए every day, हर दिन don't forget to enter in a secret place. भूलो मत उनकी कोठरी में जाने के लिए। He is the one who will talk to you. वही एकमात्र है जो आपसे बातें करेंगे। And He is the one who will build you. और Hallelujah. वही एकमात्र है जो आपका निर्माण करेंगे। Let's rise up and pray. आइए अपने कदमों पे खड़े हुए और प्रार्थना करें। Thank you, precious Holy Spirit. धन्यवाद कीमती पवित्र आत्मा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता Yeshua. यीशु। Yeheda rakhasedaiye mera lala sehedo.